Incessant rainfall for the past week continues to take its toll on Sikkim, with multiple landslides and flash floods reported across the state. Sikkim is grappling with the aftermath of the heavy downpour. Now in its 9th consecutive day of devastation, Minister of Roads and Bridges N.B. Dahal visited severely affected areas of Chungthang and Lachung to assess the damage and plan for immediate action. The ongoing floods and landslides have caused extensive damage across Sikkim, disrupting the lives of thousands of residents there. Homes, businesses and public infrastructure have been severely impacted. Also, vital infrastructure, particularly roads and bridges, have been heavily damaged. Destruction of these essential transport links have isolated several communities, complicating rescue and relief efforts. Minister N.B. Dahal, during his visit, evaluated critical needs and coordinated relief and rehabilitation efforts. Immediate restoration of roads and bridges is the need of the hour to re-establish connectivity and facilitate the delivery of aid to the affected regions. The National Highway 10 remains closed, cutting vital connectivity between Gangtok and Mangan. The Soring Dentam Road in West Sikkim also remains closed due to bad weather. Several roads to Singtam and Chungthang also remains cut off. According to the SSDMA, heavy rain is very likely to occur at isolated places over Gangtok, Gyalching, Namchi, Pakyong districts in the next 24 hours. So, incessant rainfall for the past week continues to take its toll on Sikkim, with multiple landslides and flash floods being reported across the state. And we have our colleague Prakash Adhikari over the phone line for more updates from Sikkim. Well, Prakash, we know that there are reports of multiple landslides happening in Sikkim during the past few days. It's the 9th consecutive day today that Sikkim has been battered due to incessant rainfall. Abhi paristhiti kya hai? What's the current scenario there? जी अमृता, सिक्किम में जो लगातार रूप में बारिश हो रही है, आज 10th डे है बारिश हो रही है और इसकी वजह से जो लैंडस्लाइड हुई है, नॉर्थ सिक्किम तो अभी भी कटा थे, मगर जो एक गुड न्यूज है कि जितना भी वहाँ टूरिस्ट फंसे हुए थे सभी को इवाकुएट किया गया है। कल तक सभी टूरिस्ट सुरक्षित गैंगटॉक पहुंच चुके हैं। मगर दूसरी देखिए तो देंताम एरिया, जो वेस्टर्न पार्ट है सिक्किम का, देंताम एरिया में भी हेवी लैंडस्लाइड की खबर आई है और इसी तरह साउथ सिक्किम के बर्मेक विलेज में भी लैंडस्लाइड हुआ है, मगर कोई ह्यूमन कैजुअल्टी खबर नहीं है। मगर बहुत सारे हाउसेस डैमेज हुआ है देंताम में। और इसी तरह नेशनल हाईवे की बात करें तो आज भी नेशनल हाईवे बंद है और जो हेवी व्हीकल के लिए लाइट व्हीकल तो चल रहा है, मगर सभी व्हीकल को कालीपुंग से डाइवर्ट किया गया है। तो यहाँ एसेंशियल कम्युनिटीज की अब क्राइसिस होने की चांसेस ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस तरह से हाईवे, नेशनल हाईवे डिस्टर्ब हो रहा है, तो एक बड़ा चुनौती चैलेंज अभी सिक्किम फेस कर रहा है। जी बिल्कुल प्रकाश, at the same time we knew that around 2000 tourists and drivers they were stranded, उनको रेस्क्यू किया गया है। लेकिन क्या जितने टूरिस्ट थे सिक्किम में इस टाइम जो विजिट कर रहे थे इन द हिमालयन स्टेट, सबको रेस्क्यू किया गया है? और अराउंड अभी सिक्किम में स्पेशली वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हुआ है। कितने लोग इन टोटल अप्रॉक्सीमेटली अफेक्टेड हुए हैं प्रकाश? जो नॉर्थ सिक्किम का बात करें तो वहाँ 10,000 से भी ज्यादा लोग अफेक्टेड। अभी वेस्ट सिक्किम का जो देंताम में कितना हो उसका असेसमेंट होना भी बाकी है। और साउथ में भी ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। यांगयांग में तो 3 लोग का भी डेथ हो चुका है। मगर अभी यांगयांग से थोड़ा आगे बर्मेक में ये लैंडस्लाइड की घटना हुई है, इसकी खबर मिला है। और इसी तरह जो टूरिस्ट का बात करें तो अभी जितना भी टूरिस्ट वहाँ रेस्क्यू करके गैंगटॉक पहुंचे हैं वो सभी अभी आज गैंगटॉक से वो लोग निकलेंगे। मगर सिक्किम में अभी टूरिस्ट आना बंद हो चुका है। अभी कोई टूरिस्ट सिक्किम में नहीं आ रहा है क्योंकि हाईवे की वजह से या रेनफॉल की वजह से टूरिस्ट आना तो पहले बंद हो चुका है। और नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो हाईवे की वजह से आर्मी का जो मूवमेंट है उससे थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। आर्मी का मूवमेंट हो नहीं पा रहा है, तो एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज
दिख रहा है। जी प्रकाश, हमें पता है बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड्स रोड कनेक्टिविटी भी बंद है, नेटवर्क का भी इश्यूज हो रहा था, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी परेशानी हुई बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। इट वाज अ वेरी टफ जॉब फॉर पीपल हु आर इनटू द रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। अभी स्पेशल मेजर्स कुछ लिए गए हैं फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ है उन एरियाज़ के लिए स्पेशली? जी मुख्यमंत्री भी लगातार उसमें मीटिंग कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने भी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और पीएचसी के साथ मीटिंग किया था, क्योंकि अभी बीमार का खतरा भी बड़ा है। कलेरा हो सकता है, हेपेटाइटिस ए, जॉन्डिस का एक प्रॉब्लम अभी सिक्किम में दिखने लगा है। इसको लेकर भी कल मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग किया है। और रेस्क्यू की बात करें तो अभी रेस्क्यू तो बहुत चल रहा है, मगर डोंगो में अभी कुछ क्राइसिस होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। कल खुद सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के लोग वहाँ जाने वाले थे, मगर रोड कनेक्टिविटी ठीक नहीं होने की वजह से लोग जा नहीं पाए। जिप लाइन के माध्यम से वहाँ जो राइस हो या अन्य फूड ग्रेन्स पहुँचाने का डिपार्टमेंट ने सोच बनाया था, मगर वो अभी सक्सेस नहीं हुआ है, क्योंकि जो डोंगो का एक जो ब्रिज था वो भी वॉश अवे हुआ है, तो जब टोटली कट ऑफ थे। तो जंगल में फूड ग्रेन्स के प्रॉब्लम होने की चांसेस है नॉर्थ सिक्किम में भी, क्योंकि जिप लाइन भी काम नहीं कर रहा है। काम करने, जिप लाइन का निर्माण करने में भी, बिल्ड करने में प्रॉब्लम हो रहा है रेनफॉल की वजह से। तो बहुत बड़ा चैलेंजेस अभी नॉर्थ सिक्किम को लेकर गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी फेस करना पड़ रहा है। Right. Prakash, thank you so much for joining in. Well, that was our colleague Prakash Adhikari from Sikkim giving us the latest updates on the flood affected Sikkim, where multiple reports of landslides have come in. National Highway 10 has been closed and people are suffering there, especially in west and north of Sikkim.